Hello students, in today's class we will see next topic, that is multiplication of vectors. Okay, now what has happened in this? We have seen that we can add or subtract the same types of vectors. If we have the same type of two vectors, we can add or we can subtract, and the resultant what we are getting is of the same type. Now we will see that is the multiplication. If we will multiply vectors of same or different types, we get a new physical quantity which may be scalar or vectors. यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन, अब दो वेक्टर्स सेम हो और डिफरेंट हो, we will get a new physical quantity. Now it may be called as that is the scalar or vector. That means scalar product or a vector product. Now multiplication of scalar product, that is scalar is always a scalar. दो vectors है, that is the multiplication of two scalars, we will always get a scalar. And if multiplication of a scalar with a vector is always a vector. Okay, now we will see what is the vector product. Now the vector product, it is also called as that is the dot product. Now see, that is the scalar product or the dot product. Now this is as a definition, we will see the scalar product or a dot product. Scalar product को ही dot product बोलते हैं. तो of two vectors, we have the two vectors which are that is P and Q, is defined as the product of the magnitude of the two vectors. ठीक है, ये दो vectors है P and Q. Okay, we are thinking that is the product of two vectors P and Q. So this is P and Q is defined as product of the magnitude of the two vectors. इसका जो product है उसका magnitude. So we are taking that is the PQ एक, and the cosine of the angle theta between the two angles. Now यहाँ पे diagram से दिख रहा है that is P and Q. They are the two vectors. Now these two vectors, उनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है? थीटा दिख रहा है. ओके, एंड दैट थीटा वी आर टेकिंग दैट इज द कॉस थीटा. सो व्हाट इट इज डिफाइंड एज, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. कौन से दो वेक्टर्स है? पी एंड क्यू इज डिफाइंड एज दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर. तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स and the angle between two thems. तो एंगल कौन सा है? that is the theta. So it is called as that is the cos of angle theta between the two vectors. So the scalar product of P and Q is written as P dot Q, it is equal to PQ cos theta. Okay, simple, it is defined as that is the definition form. Now student, after definition we will see that is the characteristic of the scalar product. In this we have near about 6 to 7 characteristic. Okay, so first one we will see what he is saying, that the scalar product of two vectors. हमारे पास में दो vectors है ही. Okay, we are always saying that is the two vectors. So the scalar product of the two vectors, scalar product means that is the dot product, is equal to product of the magnitude of one vector. Now this is the two vectors P and Q. Scalar product बोलने से क्या आएगा? That is the dot product. So P dot Q is equal to product of the magnitude of one vector. Okay, now we in the form of the definition we know that PQ cos theta. ये हमारा जो दिख रहा है first, it is form of the definition. उसी को उसने simplify किया और characteristic के form में. तो क्या बोल रहा है? is equal to product of the magnitude of one vector. एक vector कौन सा है? P दिख रहा. Okay, with the magnitude of the component of the other vector. other vector कौन सा है? Q है. Now इस other vector को ही क्या किया है उसने कि Q cos theta. Now see here, this is the diagram. In this diagram you can observe that there is O. From this O the two vectors are generated, origins हो रहे हैं. तो ये है तुम्हारा Q और इधर में हो रहा तुम्हारा P. Now from this point Q, उससे परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? इसका Q cos theta होता है. That is the component of Q. Similarly from the P से हम लोग जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो we are getting that is the P cos theta. Okay, तो उसी को उसने बोला है that is the P, it is as it is. एक है
दैट इज वन वेक्टर, तो एज इट इज है p, और किसके साथ में बोल रहा है, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द अदर, तो दूसरा है q लेकिन उसका कॉम्पोनेंट बोल रहा है तो क्या आ जाएगा cos थीटा, दैट्स वाई वी आर गेटिंग दैट इज p इन द ब्रैकेट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द q इन द डायरेक्शन ऑफ द p। ओके, सिमिलरली उससे कोई हम लोग क्या इंटरचेंज करके ये कर सकते हैं, दैट इज द p डॉट q इट इज इक्वल टू सेम p डॉट q दैट इज इन द वेक्टर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एक कंपोनेंट मतलब q यहाँ पे बाहर निकल गया है और दूसरा जो कंपोनेंट वेक्टर है उसका कंपोनेंट मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा p cos थीटा। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ वी विल सी द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज प्रेजेंट इन द सेकेंड कैरेक्टर? नाउ द स्केलर प्रोडक्ट ओबे द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे जो तुम्हारा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या बोल रहा है, कौन सा लॉ ओबे हो रहा है? स्केलर प्रोडक्ट तो है ही, बट इट ओबे दैट इज द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ द मल्टीप्ल। नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज द पी क्यू। दो वेक्टर्स है, उनमें क्या हो रहा है? स्केलर प्रोडक्ट हो रहा, मतलब डॉट प्रोडक्ट हो रहा। सो पी क्यू इट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट वी आर गेटिंग, पी क्यू कॉस थीटा। ओके, नाउ इसी को अरेंज कर रहे हैं एज अ कॉम्यूटेटिव, मतलब क्या हो जाता है, टर्म्स तुम्हारी इधर की उधर में, सो वी कैन गेट दैट इज द, ये क्या हो रहा है इधर, हम लोग सिर्फ टर्म्स को इधर उधर कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको, क्यू पी कॉस थीटा। और इसी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे पी क्यू है तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इट इज इक्वल टू क्यू पी, एंड सिंस वी विल से दैट द कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर द मल्टीप्लीकेशन इट इज ओ पी। ओके, नाउ द थर्ड वन। अब थर्ड वन में क्या है, नाउ द स्केलर प्रोडक्ट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नाउ सी हियर, हियर इट इज गिवन द थ्री वेक्टर्स p q एंड r। यहाँ पे p इट इज़ वन वेक्टर और दूसरा क्या बोला है, दैट इज q प्लस p इट इज सपोज अनदर वेक्टर। तो इसके साथ में अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल टर्म p q, तो क्या हो रहा, स्प्लिट हो रहा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पी क्यू, तो वी आर गेटिंग पी क्यू प्लस पी आर, तो ये क्या हो गया तुम्हारा पी आर। एंड सिंस वी विल से दैट सिंपल कि तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे हो रहा फॉर द स्केलर प्रोडक्ट में। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट, इसी में उसने बोला है वी विल गेट दैट इज द स्पेशल केस ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। नाउ व्हाट, दिस इज द डेफिनेशन, पी क्यू इट इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। नाउ दिस पी क्यू इट इज नथिंग बट द, हमारे पास में दो क्या है, वेक्टर्स है, इसमें तीन केसेस उसने बताया। फर्स्ट केस, इफ दिस टू वेक्टर्स क्या है तुम्हारे पैरेलल है। ना जब हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारे दो वेक्टर्स जब पैरेलल है, मतलब क्या, इन दोनों के एंगल, वेक्टर्स के बीच में कोई भी एंगल नहीं दिख रहा, अगर ऐसा होता मतलब क्या होता है कि उसके बीच में एंगल फॉर्म हो रहा, बट दे आर टोटली डिफरेंट, तो मतलब ये एक वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, बट इन बिटवीन देम देयर इज नो एंगल, सो वी विल टेक दैट इज थीटा इक्वल टू 0। तो उसने यही बोला है, इफ थीटा इट इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स the two vectors p and q they are parallel to each other। अब parallel है मतलब एंगल थीटा है, दिस इज अवर डेफिनेशन फॉर्म, पी क्यू इट इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। ये यहाँ पे मतलब तुम्हारे दो वेक्टर्स है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे पी क्यू एज इट इज़ है लेकिन एंगल क्या है, 0 है, तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता, एंड दैट्स वाई वी आर टेकिंग दैट इज कॉस 0 यहाँ पे 1 मिलेगा, तो इसके साथ में तुम्हारा ये 1 हो जाएगा, तो पी क्यू मल्टीप्लाई विथ 1 मतलब क्या हो गया तुम्हारा, इट इज़ इक्वल टू पी क्यू ओनली। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट। इसमें और एक पॉइंट है, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट कार्टेशियन फॉर्म में दिखते हैं, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, जैसे कि हम लोग को मालूम है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के इसमें 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन बोले तो आई, 2 डायमेंशन तो आई जे आता, और वैसे ही 3 डायमेंशन के लिए तुमको आई जे के। तो वैसे ही रिमेंबर ऑलवेज दैट इज आई डॉट आई, वैसे ही जे डॉट जे और के डॉट के इट इज़ इक्वल टू 1। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये तुमको प्रॉब्लम में काम आएगा। ओके, सो वी हैव सीन द फर्स्ट special case. Now we will see that is the second one. Now what happened in the, now we will see that is the second one. Again in this given that is the angle theta it is equal to 180 degree. Then the two vectors are anti-parallel. पहले इसमें हम लोगों ने देखा कि दो वेक्टर्स क्या है तुम्हारे
पैरेलल है. Okay, the two vectors are parallel. Now in this also the two vectors are parallel, but they are anti-parallel. मतलब एक इधर के डायरेक्शन में तो एक इधर के anti-parallel. So in this case also what will happen, that is the opposite, but they are the angle between them कितना है 180. So we know that according to this definition PQ it is equal to PQ cos 180 degree. अब 180 we know that cos 180 it is equal to -1. हम लोग पुट करने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी है तुम्हारी -1 एंड 1 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा -PQ सिंपली. ओके, नाउ वी विल सी थर्ड वन. इफ थीटा इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना है तुम्हारा, इफ थीटा इट इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहाँ पे दिख रहा है सपोज वी आर टेकिंग दैट इज द P एंड अनदर वन इट इज Q. तो ये क्या हो रहा है, दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे एंगल कितना हो रहा तुम्हारा 90 डिग्री. अगेन दिस इज आवर डेफिनेशन. अब यहाँ पे सिर्फ एंगल तुमको देखना है तो क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री एंड अगेन cos 90 मतलब 0 होता है. तो यहाँ पे पुट कर देने के बाद में क्या मिलेगा, PQ इट इज इक्वल टू 0 ओनली. ओके, सो वी आर गेटिंग दिस. नाउ यहाँ पे जैसे हमने देखा था I डॉट आई, J डॉट J, K डॉट K इक्वल टू 1, वैसे ही दूसरा पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर दैट कि सपोज वी आर टेकिंग I J, एक टर्म है तुम्हारी, एक I है दूसरी J है और दूसरा J K और K I. हमारे पास में कि कितने होते हैं, 3 होते हैं I J K. तो अगर हमारे सेम होता है तो 1 मिलता है. ओके, वी आर गेटिंग द 1. बट इफ़ वी आर टेकिंग द टू डिफरेंट I J JK और KI at that time answer it is equal to 0. Always remember that. Okay, now we will see the next one. अब हमारे पास में next है if P it is equal to Q. दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स मतलब हम लोग लेते हैं that is the P and Q. Now यहाँ बोल रहा है कि सपोज P it is equal to Q. At that time what will happen कि हमारे पास में जो दो वेक्टर्स है तो हम लोग क्या लेंगे, PQ लेते हैं. तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट ही इज सेइंग P डॉट P. ओके, एंड दैट्स वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे कि P डॉट P लेने की वजह से ये तुम्हारी जो टर्म है P डॉट Q, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारी दिस टर्म इट इज़ ऑल्सो अगेन P. तो ये क्या हो जाएगा P स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर. अगर हम लोगों ने P इट इज़ इक्वल टू Q लेते हैं, P इट इज़ इक्वल टू Q, तो दोनों क्या हो जाएंगी, स्क्वायर हो जाएंगी. और अगर Q इट इज़ इक्वल टू P लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे भी Q स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सो वी आर गेटिंग इफ़ P इट इज़ इक्वल टू Q एट दैट टाइम एक तो P स्क्वायर होगा, अदरवाइज इट इज़ अ Q स्क्वायर. ओके, नाउ नेक्स्ट the scalar product of the vector expression. Now this is quite bigger but it is very simple student. See here we have seen that in a rectangular component. Rectangular components में हमने लास्ट टाइम भी देखा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में. वी हैव सीन दैट कि ये हमारे पास में होता है एंड इन दैट देर इज़ द 2 डायमेंशन. तो 2 डायमेंशन ये तुम्हारा x है, ये y है. ओके, नाउ इन दिस केस 2 डायमेंशन होने की वजह से I एंड क्या होता है तुम्हारा ये J. इफ़ यू आर टेकिंग द 3 तो क्या होता है 3 डायमेंशन में तुम्हारा Z के साथ में K आता है. ओके, तो यहाँ पे देखो एक टर्म जो है एक वेक्टर P इट इज़ इक्वल टू उसने स्प्लिट किया दैट इज़ I PX प्लस J PY प्लस K PZ. ओके, सो ये P है तुम्हारा स्प्लिट किया. नेक्स्ट अनदर वी हैव दैट इज़ द Q. अब वैसे ही Q को हम लोग स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा I QX प्लस J QY प्लस K QZ. ओके, नाउ वी हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इन दिस 2 टर्म्स. नाउ सिंपल मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, पहले टर्म को ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके, उसके बाद में इस टर्म को पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही इस टर्म को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे I PX पूरी ये टर्म एज इट इज़ है, फिर ये J PY फिर फुल टर्म एज इट इज़, नेक्स्ट K PZ अगेन द फुल टर्म एज इट इज़. ठीक है, अब सिंपल तुम लोगों को मल्टीप्लाई करना है. तो क्या किए, सपोज मैं आपको बता रही कि उससे सिंपल टर्म में कैसे करोगे. नाउ सी हियर, इसको इसके साथ मतलब I डॉट I, तो I डॉट I उसके बाद में क्या बचता है यहाँ पे
पी एक्स और क्यू एक्स, तो पी एक्स क्यू एक्स। नेक्स्ट टर्म क्या है, इसको इसके साथ में, तो क्या मिलेगा आपको दैट इज आई जे, तो वी हैव टेकन आई जे, इसके साथ में पी एक्स बचा और क्यू वाई, तो पी एक्स क्यू वाई। ओके, इसके बाद में थर्ड पी आई नहीं सी आई के, तो आई के लिख दिए, फिर पी एक्स और क्यू जेड, तो ये पी एक्स एंड क्यू जेड। तो ऐसे ही स्टूडेंट आप लोगों को देखना है, ये मैंने आपको फर्स्ट के साथ में इनके साथ बताई, वैसे आपको इसके साथ में इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट कि इस वे से हमको पूरे टर्म मिल रहे हैं। ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा है आई डॉट आई, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया यहाँ पे कि आई डॉट आई सेम रहते हैं हमारे पास में यूनिट वेक्टर आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इट इज़ इक्वल टू 1, हमेशा 1, पर वही डिफरेंट रहेंगे तो क्या होता है, 0 होता है। नाउ इन दिस वे यू कैन से आई डॉट आई, तो यू विल गेट 1, तो 1 का एज इट इज़ तुमको पी एक्स और क्यू एक्स मिलेगा, पर यहाँ पे आई जे है तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरी 0 हो गई। यहाँ पे डिफरेंट है तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएंगी। बट नेक्स्ट जे डॉट जे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट टर्म पी वाई एंड क्यू वाई, पी वाई एंड क्यू वाई। अगेन द नेक्स्ट टर्म इट इज़ 0, ये भी 0, ये भी 0। उसके बाद में लास्ट टर्म के डॉट के है, तो हमको क्या मिल रहा है, पी जेड एंड क्यू जेड, तो पी जेड एंड क्यू जेड। ओके, तो ये पूरे 0 0 जो दिख रहे हैं उन टर्म्स को छोड़ दो, सिर्फ जो दूसरे हैं पी एक्स क्यू एक्स, फिर यहाँ पे पी वाई क्यू वाई एंड पी जेड क्यू जेड, तो आप लोगों को ये रिजल्टेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे वही बताया उसने कि एक पी के हमने स्प्लिट किए तो आई जे के में, वैसे ही क्यू को यहाँ पे, देन वी आर गेटिंग दिस टर्म, तो यही टर्म आप लोगों को मिल रहा है, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। घर में आप लोग इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। दो कॉम्पोनेंट्स को सिंपल तुम लोगों को मल्टीप्लाई करना है और डॉट प्रोडक्ट के जो है रूल्स वही तुमको फॉलो करना है। आई डॉट आई 1, जो सेम यूनिट वेक्टर्स रहेगा तो 1, अगर डिफरेंट हैं तो 0 हो जाता है। नाउ द लास्ट वन, इफ़ ए डॉट बी इट इज़ इक्वल टू ए डॉट सी। ओके, तो ये उसने इक्वेशन दिया है, ए डॉट बी इट इज़ इक्वल टू ए डॉट सी। नाउ इन दिस केस यू कैन ऑब्जर्व दैट व्हाट ही सेज दैट ए इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, बट बी इट इज़ इक्वल टू सी। तो सिंपल उसने ये किया है, आप सिर्फ ध्यान दो, बी इट इज़ इक्वल टू सी इज़ नॉट नेसेसरी यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये होना सब कुछ ज़रूरी नहीं है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग सपोज ये टर्म इधर लेके जाते हैं, क्या हो जा रखा है यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन क्या है, ए डॉट बी इट इज़ इक्वल टू ए डॉट सी, ये इक्वेशन है। हमने ये टर्म इधर कर दिए तो क्या होगा, b माइनस ए डॉट सी इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे ए टर्म कॉमन है तो ये क्या हो गया, इट इज़ इक्वल टू 0, एंड दैट्स वाई व्हाट वी आर गेटिंग a in the bracket b minus c it is equal to, अब यहाँ that is b minus c it is equal to 0, since what he says that कि जो दो है एंगल हमारा 0 मिल रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा, अगर दो एक दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर है एट दैट टाइम वी आर गेटिंग इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोगों ने यही देखा है स्पेशल केस में कि दो वेक्टर्स है p एंड q, इफ़ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट दैट टाइम p डॉट q इक्वल टू 0, और यही यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा। सो यहाँ ने उसने क्या बोला है, b माइनस सी इट इज़ अ 1, और ये a, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में क्या है, परपेंडिकुलर, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दैट इज द b माइनस सी, दिस इज द अनदर, इट इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, सो आई होप दैट you understand this completely, that is the multiplication of the vectors। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में सिर्फ उसने क्या बोला है कि आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही फिजिकल क्वांटिटी में हो सकता है। नाउ सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अगर वो सेम वेक्टर्स
और द डिफरेंट रहा तो उनमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को मिलती है. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर रहे तो यू विल ऑलवेज गेट द स्केलर टर्म. मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर यू विल गेट द ऑलवेज वेक्टर टर्म. उसके बाद में उसने डिफाइन किया स्केलर प्रोडक्ट को. तो डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और वही उसको मैथमेटिकल टर्म में दैट इज द p vector and q vector it is equal to that is the magnitude of the two vector and the angle between the two vectors. यही डेफिनेशन यही मैथमेटिकल टर्म लेके उसने हर एक इसमें एक्सप्लेन किया है. पहला भी देखा हमने तो लास्ट तक कर लिए है. I hope that you understand this. In the next video we will see that is the cross product.